अरे देखो कितने बड़े दानव हैं, Oh, look how great and mighty ये तो giants. ऐसे ही हमें खत्म कर देंगे। They will destroy us like this. और अभी दो हैं, And there are two वो कह रहे हैं who are saying, अरे क्या है ये, what are these giants? क्या है ये बड़े दानव, What are these giants? अरे ये तो हमारे ब्रेड की तरह है, नाश्ते में खा जाएंगे इनको। They shall be like breakfast for us. सुमित का है, सुमित अपने ऑफिस में किसी और को प्रचार कर रहा था, Sumit was in his office preaching the gospel to यीशु someone के else, बारे में बता रहा था। telling them about Jesus. वहां पे कोई और सुनने लगा Somebody else started to hear the जिसको वो नहीं conversation, बोल रहा था, to whom he was not speaking. और वो पूरा परिवार आज कलीसिया में आता है। And that whole family is in the church today. आपने पढ़ा, परमेश्वर कह रहा है जो तू मेरे सामने बोलेगा, What did you मेरी read? उपस्थिति में बोलेगा, वैसा ही मैं तेरे साथ करूंगा। The Lord has said, whatever you will speak in my hearing, in my presence, so will I do to you. और उसकी उपस्थिति में मैं एक घोषणा करता हूं, ये साल आपके जीवन का अब तक का बेस्ट साल होगा, यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. Amen, amen, amen. Praise God. Amen. Happy and blessed New Year, family. Amen. क्या ही महान है वो परमेश्वर जिसकी स्तुति हम करते हैं। What an almighty God we worship, we serve. Hallelujah. Praise God. मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं जो मसीह में हैं। We who are in Christ are so blessed. कई बारी हम रियलाइज नहीं करते इस बात को। Many times we don't realize. It's such a great privilege ये इतना महान सौभाग्य है that He chose us. कि उसने हमें चुना, He called us. उसने हमें बुलाया, He washed us with His own blood अपने खुद के लहू से हमें धो दिया and gave us the authority of a son. और एक पुत्र का अधिकार हमें दे दिया, Made us seated with Him in the heavenly places, far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named. स्वर्गीय स्थानों में हमें उसके साथ बैठा दिया, कई ज्यादा ऊपर उन सारी शक्तियों, प्रधानताओं से और हर एक नाम से जो नाम है इस दुनिया में। Amen. Hallelujah. उसका वचन कहता है कि उसकी करुणा और दया की वजह से हम नाश नहीं हुए। His word says, because of His great mercy we are not consumed. अगर आप जीवित हैं If you are alive, तो इसका मतलब परमेश्वर का भी बहुत काम है। that means God has a lot of work pending. अगर काम पूरा हो जाता If तो the घर work- चले जाते। If the work was over, you would have gone home. अगर जीवित हो If you are alive, तो बहुत कुछ करना है अभी। then there is much to do. Amen. Amen. And मैं बिलीव करता हूँ ये साल अभी तक का हमारा बेस्ट साल होगा। I believe this year is going to be our best year so far. Amen. ये बेस्ट साल होने वाला है। This is going to be our best year so far. 5 गुना बढ़ोतरी, 5 times increase, गुना अनुग्रह, 5 times grace, 5 गुना परमेश्वर की सामर्थ। 5 times God's power. Amen. और जैसे मैं सोच रहा था इस बारे में, 5 जो है, आप अपने हाथ को जब देखते हैं उसमें 5 उंगलियां, ये 5 ग्रेस का नंबर है, अनुग्रह का नंबर है। And then I was thinking about it. There's 5 fingers in your hands. 5 is the number of grace. और अगर आप ये जो साल अगर आप इब्रानी कैलेंडर में भी देखें तो ये 5 से शुरू होता है और 5 से खत्म होता है। And if you see the year in the Hebrew calendar, it starts on the day 5 and ends on day 5. और जब उसको साथ में जोड़ेंगे तो 25 होता है। And together it's 25. और ये साल भी 2025 है। And the year is 2025. 5 times 5, 5 गुना 5. Amen. 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 हालेलुया।
सो इस साल मैंने आपको लास्ट ईयर भी बोला था, इस साल वैसे नहीं होगा जैसा पिछले साल हुआ. I told you this year is not going to be like the last year. Amen. साल आपके ऊपर वैसा नहीं होगा जैसा साल होना चाहता है. The year will not be upon you the way the year wants to be. आप अपने मुंह से दिशा देंगे इस साल. But you will give the direction to this year through your mouth. आप घोषणा करेंगे कि मेरा साल कैसा होगा. You will decree and declare how your year is going to be. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. तैयार हैं आप Are you ready वचन के लिए? for the word? याद रखिए, 5 गुना अगर ग्रेस है तो 5 गुना मेहनत भी कराएगा ग्रेस आपसे. Remember, if there's 5 times more grace, the grace will make you labor 5 times more. Amen. हाँ, अनुग्रेस ले नहीं है कि घर पे बैठो चिप्स खाओ. Grace is not so you can sit at home and eat chips. अनुग्रह को उद्देश्य के साथ दिया जाता है. Grace is given with a purpose. पौलुस प्रेरित कहता है Paul the apostle says कि मैंने उस ग्रेस को, मैंने उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरने दिया जो मेरे ऊपर हुआ. that I did not let that grace go in vain which was upon me. तो ये मेरी प्रार्थना है इस कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, कि वो अनुग्रह आप व्यर्थ ना जाने दें इस साल. This is my prayer for this church, for every person here, that you would not let that grace go in vain which is upon you. Amen. कल रात जब मैं वचन बना रहा था तो ये वचन मेरे पास आया. Last night when I was preparing the word, this word came to me. ज़करिया 4:7. Zakaria 4 उसका 7. अभी इस साल कितना भी बड़ा पहाड़ हो, No matter how big a mountain is, परमेश्वर का सामर्थ उसको चूर चूर कर देगा. this year the power of God will destroy it for you. Amen. Amen. कितनी भी बड़ी बीमारी हो, No matter how कितनी big a भी बड़ी sickness, परीक्षा हो, how big a कितना भी temptation, बड़ा चैलेंज हो, how big a challenge, ये साल महान पहाड़ को भी धूल कर देगा. this year God will bring down every great mountain to dust. और ये प्रतिज्ञा मैं आपको दे रहा हूँ, ज़करिया 4:7. And this promise I am giving to you, Zakaria 4 उसका 7. Who are you, O great mountain? कौन है तू हे बड़े पहाड़? Not just a mountain, सिर्फ पहाड़ ही नहीं, but a great mountain. लेकिन एक बड़ा, एक महान पहाड़. मैंने आपको बताया था, पहाड़ वो है जो आपके लिए बहुत बड़ा है. I told you a mountain is something that is too big for you. अब ये पहाड़ भी नहीं है, Now this is not ये even a महान mountain. पहाड़ है. This is a great mountain. यानी बहुत 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 बड़ा है. This is a very big mountain. मगर जो विश्वास के लोग हैं But the people of faith, वो ऐसे बोलते हैं, they speak like this. हे बड़े पहाड़, Oh you great तू mountain. क्या है? What are you? Amen. Amen. इस साल आपको अपनी भाषा चेंज करनी है. This year you need to change your language. इस साल आपको अपनी बोली चेंज करनी You है. have to change the way you speak. आप वैसे नहीं बोल सकते जैसे कई सालों से बोलते आए हो. You cannot speak the way you have been speaking from years. I want you to put Numbers 14:28. इस साल गिनती एक prophetic 14:28. word ये है, ध्यान से इसको याद रखो, इसको बांध लो, अपने पास रख लो. गिनती 14:28 ये this is the prophetic word for the year. Remember it, tie it around you. ये आपका परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है. This is the promise that your God is giving to you. Say it to them. So I'm saying to you. परमेश्वर ने कहा उनसे बोल दे मूसा. So मैं आपसे बोल रहा हूँ. Amen. Amen. उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा. Say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Amen. इस साल एक भी वचन जमीन पर गिरेगा नहीं यीशु के नाम में. This year, not even one word will fall to the ground in Jesus' name. इस समय हर प्रतिज्ञा को आप पूरा होते हुए देखोगे यीशु के नाम में. You will see every promise come to pass in Jesus' name in this time. हालेलुया.
क्या आप विश्वास करते हो इस बात Do में? you believe? हर एक चीज परमेश्वर के राज्य में विश्वास से कार्य करता है। Everything in the kingdom of God works through faith. जो लोग बोलते हैं अरे ये नया साल है तो कुछ तो बोलेंगे, The people that say, oh, it's a new year, so ऐसे they'll say कुछ नहीं something. होता। Things don't happen तो like मैं this. लिख के दे रहा हूँ, उनके साथ ऐसा ही होगा। Then I will write and give that this is what will happen to them. क्या आपने पढ़ा? परमेश्वर कह रहा है जो तू मेरे सामने बोलेगा, What did you मेरी read? उपस्थिति में बोलेगा, वैसा ही मैं तेरे साथ करूंगा। The Lord has said, whatever you will speak in my hearing, in my presence, so will I do to you. और उसकी उपस्थिति में मैं एक घोषणा करता हूँ, ये साल आपके जीवन का अब तक का बेस्ट साल होगा, यीशु मसीह के नाम में। This year will be your best year so far in your life in Jesus' name. कम ऑन, एक बड़ा आमीन दो। आमीन। एक बड़ी प्रेज करो प्रभु की इस समय। उसको बोलो परमेश्वर, ये मेरे जीवन का बेस्ट साल होने वाला है यीशु के नाम में। Tell him, Lord, this is going to be the best year of my life so far in Jesus' हे name. बड़े पहाड़, तू क्या है मेरे यहोवा के सामने? Oh, you great mountain, what are you for my Lord? हालेलुया। वो बड़ा कैंसर, That वो big बड़ा cancer, आर्थराइटिस, that big वो बड़ा arthritis, कर्जा, that big debt, बात करना शुरू करो। start speaking to them. आमीन। Amen. इस पूरे साल हम वो नहीं बोलेंगे जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो। We will not speak what we do not want should happen to us this year. हम वो ही बोलेंगे जो हम चाहते हैं हमारे साथ हो। We will only say what we want should happen to us. आमीन। तो कोई नेगेटिव बात नहीं, So no कोई negative words, क्रिटिसिज्म नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई चुगली नहीं। no gossip, no criticism, no comparisons. अब जानते हैं ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि इजरायलियों ने कहा हाय हम तो नाश हो जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे उस वाचा के लैंड में, उस वाचा की भूमि में जहां परमेश्वर में, हम तो नाश हो जाएंगे। तो प्रभु ने कहा जैसा तुमने कहा है वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। This context was a negative context because the Israelites said, oh, we will be destroyed in the wilderness. We will never be able to enter the land of promise that God has given. And the Lord says, so shall I make it happen to you. और मसीह लोग नहीं समझते, And believers don't आज भी understand. यही होता है। Even today, the same thing happens. आमीन। इसीलिए आज हम डिसाइड करेंगे, पहला संडे है, So today we will decide. It's the first Sunday of the year. पहला हमेशा परमेश्वर का है, The first always belongs to the वो Lord. पहलौठा है, पहला फल उसका है। He is गर्भ the का first. पहला फल परमेश्वर ने कहा मेरा है, The वो first पहलौठा fruit. है, He said, the first fruit belongs to me. He's the firstborn. पहला उसका है। The first belongs to him. आज Today? हम डेडिकेट करते हैं, और जो हम घोषणाएं आज करेंगे, आज के बाद अब आप उसका फल खाओगे पूरे 2025। We dedicate this day to him, and whatever you will decree today, you will eat the fruit of it the entire year 2025. कितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं? साथ में हाथ दिखाओ। How many people are fasting along with us? Show us your hand. आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बड़ा प्रतिफल आप देखोगे। A mighty fruit, a mighty harvest you will see. ओके, चलते हैं इस आयत में वापस। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? मेरे पीछे बोलो, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? Say with me, what are you, a great mountain? ये है एटीट्यूड विश्वास के लोगों का। This is the attitude of the people of faith. आमीन। विश्वास के लोग अलग तरीके से बोलते हैं। The people of faith speak differently. जब 12 स्पाइस, जो 12 जासूस मूसा ने भेजे कनान देश में, When Moses sent the 12 spies to the land of Canaan, और 10 वापस आए, बाइबल कहती है ईविल रिपोर्ट लेकर, बुरी खबर लेकर। and 10 of them came back with an evil report.
आप जानते हैं परमेश्वर ने किस खबर को बुरी खबर कहा? You know which report God called an evil report? जो सेंस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो रिपोर्ट आई, परमेश्वर ने उसको इविल रिपोर्ट या बुरी रिपोर्ट कहा। The report that was based on our sense knowledge, God called it an evil report. हाँ, आज कई लोग क्या भविष्यवाणियां करते हैं, वो देखते हैं क्या चल रहा है, उसके बाद बोल देते हैं। What many people prophesy, or how many people prophesy today, is they see what is happening around and then they prophesy accordingly. एक्सीडेंट हो जाएंगे, ये तो विश्वास के लोग अलग तरीके से बोलते But the people of faith speak differently. हैं। आमीन। हम बुरी रिपोर्ट देने वालों में से नहीं, हम उन 10 जासूसों में से नहीं है। ये कलीसिया 10 जासूसों की कलीसिया नहीं है, ये उन 2 की है। बाइबल कहती है उनके ऊपर एक अलग आत्मा था। इस कलीसिया के ऊपर एक अलग आत्मा है। We are not among the 10 spies who brought a negative report. We are not from them. This church does not belong to those among the 10 spies. This is those 2 spies that had a different spirit. 10 जो आए वो कहते थे, अरे इतने बड़े दानव हैं। The 10 that came back, they said, "Oh, there are mighty giants there. हम तो टिड्डी की तरह थे उनके सामने। We are like grasshoppers before them." आज कई मसीह अपने आप को हम माइनॉरिटी। Oh, many believers today look at themselves as minority. माइनॉरिटी हो? अरे खुदा जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया वो तुम्हारे साथ है। The God who created the entire creation is with you. जिसके साथ खुदा है वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। The one whom God stands with cannot be minority. आमीन। शारीरिक तरीके से अपने आप को देखना बंद करो और परमेश्वर की आंख से अपने आप को देखना शुरू करो। Stop looking at yourself from the eyes of the flesh and start to see yourself from the eyes of God. आमीन। अरे देखो कितने बड़े दानव हैं। Oh, look how great and mighty ये तो giants. ऐसे ही हमें खत्म कर देंगे। They will destroy us like this. और अभी 2 हैं, And there are 2 वो कह रहे हैं who are saying, अरे क्या है ये? "What are these giants? क्या है ये बड़े दानव? What are these giants? अरे ये तो हमारे ब्रेड की तरह है, नाश्ते में खा जाएंगे इनको। They shall be like breakfast for us." आमीन। Amen. मगर दुख की बात यह है But the sad thing is, पूरी इज़राइल की मंडली ने उन 10 की मानी और इन 2 की नहीं मानी। that the entire congregation of Israel believed those 10 and they did not hear these 2. आज जब हम कहते हैं Today when we say, कि ये साल बहुत बेस्ट होगा तो लोग कहते हैं देखा ये क्या बोल रहे हैं। This ये year- नहीं बता रहे लोगों को कि एक्सीडेंट होंगे, भूकंप आएंगे, ये होंगे, वो होंगे। when we are saying 2025 is going to be the best, people are saying, "Oh, what are they saying?" They're not telling people accidents will happen, earthquakes will come. हाँ भैया, हम हैं ही अलग अलग हैं। हम 2 Yes, we are different. हम 2 जासूसों में हैं। We एक are- अलग आत्मा है। We are among those 2 spies who had a different spirit upon them. और बाइबल बताती है पूरी रात इज़राइल की मंडली रोती और विलाप करती रही, हाय हम गए। The Bible tells us that the congregation of Israel kept on weeping and crying the entire night, saying, "Oh, woe unto us." और परमेश्वर नाराज हो गए And God was angry with them क्योंकि वे भूल गए कि उनके साथ कौन था। because they forgot who was with them. अपने पड़ोसी को बोलो, भूलो मत आपके साथ कौन है। Tell your neighbor, don't forget who is with you. आमीन। Amen. हम एक अलग पीढ़ी हैं, We are a हम different विश्वास के generation. लोग हैं। We are the people of faith. हालेलुया। Hallelujah. कितने भी महान पहाड़ हो, No matter कितने how भी great महान दानव हो, mountains, how great कम फिर giants. से मेरे पीछे बोलो, Say this after हे me. बड़े पहाड़, Oh, you great mountain. तू क्या है? Who are you? जेरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। आमीन। जेरुब्बाबेल उस समय का गवर्नर था, जो एक पिक्चर है यीशु मसीह की और एक अपोस्टलिक लीडर की। Zerubbabel, before Zerubbabel, you shall become a plain. Zerubbabel depicts the picture of Jesus. और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। And he shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace to it.
यानी कैपस्टोन कब लगता है? When is the जब कोई capstone बिल्डिंग placed? पूरी हो जाती है। When the building is complete. अनुग्रह से शुरू हुआ है, It started with grace. और जब आखिरी पत्थर लगेगा तो भी बोला जाएगा अनुग्रह, और अनुग्रह के द्वारा ये घर पूरा हुआ है। And when the last stone is placed, it shall be called, by grace it began, and by grace this house has been built. ये केवल अनुग्रह नहीं है, This is not just grace. ग्रेस ग्रेस, It's grace, grace. Anugrah, anugrah. माइटी ग्रेस, Mahan anugrah. पावरफुल ग्रेस, Shaktishali anugrah. आमेन, ग्रेट ग्रेस। Mahan anugrah. और ग्रेट माउंटेन को अगर पॉर्डर करना है तो यू नीड ग्रेट पावर। And if you want to bring down, if you want to powder a great mountain, you need great power. प्रेरितों के कार्य 4 उसका 33वें लगाओ। यही इस साल की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस कलीसिया को दी है। हम लोग ग्रेट ग्रेस और ग्रेट पावर को देखेंगे इस साल। Acts 4:33, this is the promise that God has given to this church. We will see great grace and great power in our lives. मेरे पीछे बोलो ग्रेट ग्रेस, ग्रेट पावर। बोलो महान अनुग्रह, महान सामर्थ्य। आमेन। मगर एक चीज आपको करनी है, उसके बाद मैं वचन में जाऊंगा। One thing you have to do, then I'll go into the word. प्रेरितों के कार्य 4:33 इसमें लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. ये साल आत्माओं को जीतने का साल है, This is the year to win souls. और ये मेरी प्रार्थना है And it's इस my prayer. घर का हर एक व्यक्ति एक सोल विनर हो, आत्माओं को जीतने वाला हो। That every person in this house shall be a soul winner, one who wins people. मगर क्योंकि आपके ऊपर महान सामर्थ और महान अनुग्रह है, आप एक यीशु मसीह की कहानी नहीं बताओगे। But because there is great power and great grace upon you, you will not just tell the story of a Jesus. आप क्या करोगे? What will you do? आप उसके रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का गवाह बनोगे। You shall be a witness of His resurrection. आमेन। Amen. यानी जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओगे, वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके द्वारा कार्य करेगी। Amen. That means when you will talk about that Jesus, when you will witness about that Jesus, the power of His resurrection will work through you. आमेन, हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. आमेन। आप लोगों को याद है जो वर्ड मैंने 31 को दिया था? कितने लोगों को याद है जो 3 मेटाफर पौलुस ने बताए विश्वासियों के लिए? How many of you remember the metaphors that I gave, that Paul gave for the believers? The A three metaphors. soldier, एक सैनिक, an athlete एक खिलाड़ी and a hard working farmer. और एक परिश्रम करने वाला किसान. आमेन। Amen. इस साल हमें कैजुअल नहीं होना है। We should not be casual this year. मैं होने नहीं दूंगा आपको। I will not let you be casual. Amen. आमेन। हीट बढ़ने वाली है। The heat is about to increase. Amen. उसका वचन कहता है कि उसने स्वर्गदूतों को विंड यानी हवा, His word says He's made His angels wind और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। and His ministers a flame of fire. सेवक केवल पास्टर और प्रीचर नहीं, हम सब उसकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। और अगर आप परमेश्वर के सेवक हो तो आपका मार्ग होना चाहिए, धधकती हुई आग आपके द्वारा निकलनी चाहिए। Not only pastors are called to be ministers, but each one of us are called to be ministers of God. And if you are His minister, you shall be a flaming fire. Amen. ये 21 दिन की जो हम फास्टिंग कर रहे हैं, There's 21 days fast that we're doing. not just abstraining yourself from food, सिर्फ खाने से अपने आप को दूर रखना नहीं है, spend time in prayer, प्रार्थना में समय बिताओ, be fervent in prayer. पूरे दिल से प्रार्थना करो. Amen. जो लोग काम करते हैं, The people who are working, you know,
अगर लंबा चलना है आपको, we can take one meal at night. If you want to fast for long, आप रात को एक बार खाना खा सकते हो. But पूरे दिन प्रार्थना में रहो. But the entire day stay in prayer. You can end your fast at 6. आप 6 बजे अपना फास्ट खत्म कर सकते हो. Then pray. फिर प्रार्थना करो. ऑफिस से आओ, Come काम again. से आओ, Come back अपने from आप को work. ये 21 दिन अपने आप को सेपरेट करने का टाइम है. These 21 days are the days to separate yourself. हमने सीखा था कैसे कि जो एक सोल्जर होता है, वे- आप जानते हैं जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं आर्मी के, वो सिविलियन पॉपुलेशन से अलग होते हैं. अलग किया जाता है उनको ट्रेनिंग के लिए. The training camps of an army are separate from the civilian camp. बिकॉज दे आर गेटिंग ट्रेन फॉर बैटल. क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं. बाइबल हमें बताती है कि बाइबल हमें कहता भी विश्वास की एक अच्छी कुश्ती को लड़ना है. That we have to fight a good fight of faith. ये हमारी ट्रेनिंग के दिन है. These are the days of our training. 21 दिन 21 days, ट्रेनिंग के. training days. आमीन. मैंने आपको बताया था एक जीवन है, I told you we have one life. आप डिसाइड करो कैसा जियोगे. You decide how you want to live. क्योंकि जैसा जियोगे Because howsoever you will live, अनंत में वो बदल नहीं सकता. you cannot change it in eternity. आपकी गवाही अनंत तक वही होगी. Your testimony will remain the same in eternity. अगर आपने एक सच्चा जीवन प्रभु के साथ बिताया, If you have lived an honest life with the Lord, अंत में जब आग आएगी परखने के लिए हमारे काम, in the end when the fire will come to test our works. क्योंकि बाइबल कहती है आग हर किसी के कामों को परखेगी अंत में. Because the Bible says the fire will test each one's works at the end. और अगर पवित्र उद्देश्य से सच्चे दिल से आपने परमेश्वर की सेवा करी, तो जो आपने किया वो सोने की तरह चमकने लग जाएगा. And if whatever you did for Him, you did it with an honest heart, with a good desire, then whatever you have done will start to shine like gold. मगर अगर आपने गलत उद्देश्य से करा, But if you did it with wrong motives, तो बाइबल बताती है आग आकर उन सारे कामों को जला के नाश कर दे. then the Bible says the fire will come and destroy everything that was done. बाइबल कहती है तुम तो बच जाओगे, The Bible says you shall be spared, मगर दिखाने के लिए, प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं होगा. but you will have nothing to offer to the Lord. हम सबको आज एक चीज समझनी बहुत जरूरी है All of us have to understand this one thing today. कि हम सब एक दिन उस मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होंगे. That all of us will stand before the throne of Christ one day. हमें अनंत को अपने आगे रखते हुए जीना है. We have to live keeping that eternity in front of us. आमीन. Amen. पौलुस प्रेरित कहते हैं कि अगर हमारी आशा कि मैं कनाडा चले जाऊं, मैं अमेरिका चला जाऊं, केवल अगर मसीह के पीछे चलना मेरी ये चीज है, तो बाइबल कहती है हम सारे मनुष्यों में से सबसे अभागे लोग हैं. Paul the apostle says if our hope is only for this life, that we want to get something from Jesus only for this life, then we are the most pitiable people among all. वो सब करता है हमारे लिए जब हम उसके पीछे चलते हैं. He does everything for us when we walk after Him. मगर मैं चाहता हूं आज हम उस कमिटमेंट को दोबारा से परमेश्वर वो रिन्यू करें हम. But I want that we should renew that commitment towards Him again. कई लोग आज कहते हैं मैं नहीं जा रहा कलीसिया, मैं प्रभु के पीछे नहीं जा रहा. क्यों नहीं जा रहा? अजी प्रभु ने मेरी सुनी नहीं, मेरा वीजा नहीं लगा. Some people say, I don't want to follow after the Lord anymore. He didn't get me my visa. I'm not going to follow Him anymore. वो 3 इब्रानी लड़के The 3 Hebrew boys जो राजा के सामने लाए गए, who were brought before the king. और राजा ने कहा मैं देखता हूं तुम्हारा खुदा तुम्हें आज कैसे छुड़ाता है मेरे हाथों से. The king said, I will see how your God will deliver you out of my hand today. उन्होंने कहा हे राजा सुन ले, They said, King, hear us. हमारा परमेश्वर हमारा खुदा इतना माइटी है कि तेरे हाथ से हमें छुड़ा सकता है. Our God is so mighty that He can deliver us out of your hand. मगर ये बात सुन, But hear this, अगर ना भी छुड़ाए even if He does तो भी not तेरी deliver us, मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं. even if He does not deliver us, even then we will not bow before your statue. क्या आज ऐसे विश्वासी हैं? Are there believers like that today? वीजा लगे ना लगे, Whether you get your visa or not. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे
on, church. ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। क्रूस है आगे, क्रूस है आगे, दुनिया है पीछे। क्रूस है आगे, दुनिया है पीछे। क्रूस है आगे, दुनिया है पीछे। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। क्रूस है आगे, क्रूस है आगे, दुनिया है पीछे। क्रूस है आगे, दुनिया है पीछे। क्रूस है आगे, दुनिया है पीछे। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, 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 ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मंजिल है आगे, मंजिल है आगे, दुनिया है पीछे, दुनिया है पीछे। हाँ, मंजिल है आगे, दुनिया है पीछे। मंजिल है आगे, दुनिया है पीछे। ना लौटूंगा, 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 ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Though none go with me, still I will follow.
carry till I see Jesus. No turning back, 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 no turning back. The world behind me, the world behind me, the cross before. The world behind me, the cross before. Oh, behind me, the cross before. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. कम ऑन, 1 मिनट के लिए अपने हाथों को खड़ा करो और परमेश्वर से वो बर्डन मांगो आत्माओं के लिए। Come on, lift up your परमेश्वर को hands for a बोलो, moment, for a minute. टेल हिम, फादर गिव मी बर्डन फॉर सोल्स। बोलो उसको, परमेश्वर मुझे वो बोझ दे आत्माओं का खुदावन। यीशु मसीह जो बोझ आप कैरी करते हैं, Tell him, Jesus, the burden that you carry for souls. गिव मी योर बर्डन फॉर सोल्स जीसस। मुझे अपना वो बोझ दो प्राणों के गिव लिए। मी योर बर्डन फॉर सोल्स मुझे अपना वो जीसस। बोझ दो प्राणों के लिए प्रभु यीशु। मेक मी अ सोल विनर होली स्पिरिट। मुझे प्राणों को जीतने वाला बनाओ पवित्र आत्मा। वी प्रे टू द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट हम उस फसा के परमेश्वर से प्रार्थना करते that he would raise thousands of laborers in this house. कि वो हजारों मजदूरों को उठा के खड़ा करे इस घर में। Because the harvest is ready and plentiful. क्योंकि फसल तैयार है और बहुत आयत में है। There are many people in Delhi waiting for someone to preach the gospel to them. बहुत से लोग हैं दिल्ली में जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए और हमें सुसमाचार सुनाए। Tell him, Lord, I will go. उससे कहें, प्रभु मैं जाऊंगा। Hallelujah. Amen. You know, इस साल कुछ दिन पहले, I think last week जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का क्लियर इंस्ट्रक्शन मुझे आया कलीसिया को लेकर, और उसने कहा कलीसिया के हर एक व्यक्ति को कह दे कि हर एक व्यक्ति इस कलीसिया में एक सोल विनर बने। When I was praying last week, the Lord said, tell each person in this church that every member, every person in this church should be a soul winner. आप जानते हैं, आपकी पहली बुलाहट, Your first calling, जो भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए, No matter what we सबसे do. पहली बुलाहट हर किसी की क्या है? हम एक गवाह होने के लिए बुलाया गया है। whatever we do for the Lord, above all of that, our first calling is to be a witness for the Lord. एक बार जब हम मोती नगर में थे One time when we were in Moti और Nagar, आराधना चल रही थी, worship was happening, और मैं बिल्कुल पीछे खड़ा होके मैं आराधना कर रहा था। and I was standing at the back and worshiping, मुझे प्रभु की आवाज आई, and I heard the Lord. and he said, उसने a कहा, church that does not win the lost is lost. वो कलीसिया जो खोए हुओं को नहीं बचाती, वो खोई हुई कलीसिया है। एक कोई एक क्लोज्ड ग्रुप क्लब नहीं है This is जहाँ not a- पर हम आके मजा करके घर चले जाते हैं। This is not a closed group club where we come and enjoy and go home. मैंने आपको बताया था, ये आर्मी है, I told you this is an army. इसका एक उद्देश्य है। This has a purpose. मैं चाहता हूँ आज के बाद आप अपने आप को एक योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह जो आर्मी में भर्ती हुआ है वैसा देखना शुरू करो। I want you to start seeing yourself as a soldier in an army, like you have joined the army of the Lord. आमेन। सिपाही की तरह ज्वाइन करो, विश्वासियों के से बढ़ते जाओ, मेडल लगते जाएंगे। Start as a soldier, be faithful in the journey. He will keep on adding medals to you. उसका वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको बहुत दिया जाएगा। His word says, he who is faithful in little shall be given much. आमेन। मैं बता रहा हूँ, आप अभी फास्टिंग का जब पहला रात था, प्रभु ने मुझे एक ड्रीम दिया, और मैंने ड्रीम में देखा कि एक काफ़ी चौड़ा गेट है अंदर आने के लिए, लोग आने की कोशिश करें, मगर भीड़ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी भीड़ हो गई कि इतनी भयंकर धक्का मुक्की हो रही है अंदर आने के लिए।
On the first night of fasting, I saw in a dream, the Lord showed me that there's a huge gate for entrance, but there is such a huge crowd that there is almost stampede to enter the hall. Amen. बहुत बड़ी कटनी करनी है दिल्ली में. There is a huge harvest we have to do in Delhi. Amen. बाइबल बताती है he who wins the souls is wise बाइबल कहती है जो प्राणों को जीतता है वो बुद्धिमान है and will shine like a star in the kingdom of his father. और उसके पिता के राज्य में वो सितारों की तरह चमकेगा. आज की दुनिया में बॉलीवुड के हॉलीवुड के बहुत सारे स्टार हैं, मगर उनकी जो महिमा है, उनकी जो ग्लोरी है वो फेडिंग है. जहाँ शक्ल में झुर्रियाँ आती हैं, ग्लोरी भी फेड कर जाती है. There are many stars in Bollywood and Hollywood, but as they start to wrinkle, their glory goes down. 5-10 साल 5-10 years. इंजेक्शंस और बोटॉक्स काम कर लेता है, Injections and Botox help them. मगर उसके बाद After जब that, मूवी आना उनकी बंद हो जाती है, when their movies stop coming, तो वो महिमा भी फेड हो जाती है. their glory also fades away. मगर जो आत्माएं बचाता है, But he who saves souls, बाइबल कहती है वो अपने पिता के राज्य में तारों की तरह चमकेगा, जिसकी महिमा का कोई अंत नहीं. आप योर ग्लोरी विल नेवर फेड इन जीसस नेम. Bible says he will shine like stars in the kingdom of the Father. आपकी महिमा कभी कम नहीं होगी. आमीन. और मैं आपको बता रहा हूं, बीच छिड़कते जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा. मैं ये मैसेज तो मैं बना के नहीं आया था, मगर आत्मा आज भी कलीसिया से कहता है. Amen. I'm telling you, keep on going and distributing the seed everywhere you go. सुमित का है, सुमित अपने ऑफिस में किसी और को प्रचार कर रहा था. Sumit was in his office preaching the gospel to यीशु someone के else, बारे में बता रहा था. telling them about Jesus. वहां पे कोई और सुनने लगा Somebody else started to hear the जिसको वो नहीं conversation, बोल रहा था, to whom he was not और speaking. वो पूरा परिवार आज कलीसिया में आता And है. that whole family is in the church today. मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं. Many people are कौन waiting. आएगा, Who will come? कौन हमें छुड़ाएगा, Who will deliver us? कौन हमारी परिस्थिति से हमें निकाल Who सकता will है. take us out of our situation? हालेलुया. आमीन. आप सब बैठ सकते हैं. Y'all can be seated. आज टेंशन नहीं है, There's no tension today. आज फास्टिंग है, सो लंच नहीं है. We have fasting, so there's no lunch आज हम outside. जा सकते हैं 6 बजे तक. We can go till 6 p.m. today. आमीन. हालेलुया. बाहर जो जाएगा कुछ नहीं मिलेगा उसको, खाली लॉन है. Yeah, the lawn is empty today. घास There's no खानी है food. तो चले जाना बाहर. तो घास खाने से अच्छा है कि उसका वचन खाओ जो जीवन देने वाला है. It's better to eat His word, which gives life, than grass. Amen. Bible says be vigilant. बाइबल कहती है सचेत रहो. मैं ये भी आपको कह दूं, Let me also say this to you. और ये मैं जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे महसूस हुआ, मैं फीलिंग्स में नहीं, I perceived it in my spirit. When I was praying, मैंने अपनी आत्मा में ये इस बात को जान लिया. The warfare is going to intensify. जो लड़ाई है वो और ज्यादा गंभीर होने वाली है. मगर युद्ध हमारा नहीं, But the युद्ध यहोवा का है. battle doesn't belong to us. The battle belongs to the Lord. Amen. Amen. कितने बड़े लोग बड़ी गवाहियां चाहते हैं इस साल. How many people want big testimonies in their तो life? बड़ी गवाहियों के लिए the bigger the test, the bigger the testimony. तो जितनी बड़ी परीक्षा है उतनी बड़ी उसमें से गवाही होगी. कितने लोग बड़ी जीत देखना चाहते हैं. How many people want to see a big victory in their life? Amen. So तैयार करो अपने आप को. So prepare yourself. तैयार करो. मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे समयों में हम जी रहे हैं, अब कैजुअल क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा. The times we are living in, it will be very difficult for casual Christians. बहुत सारे आप देखोगे जो केवल आते हैं वीजा लगाने के लिए, मेरा वीजा लग जाए, वो सब चले जाएंगे वापस. Many you see who come for a visa, they will go back. मगर जो ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा सच्चा धन है. But it's
Most important to first know Jesus, you are my first, foremost, superior treasure. अगर मुझे जब यीशु मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया है. When I have found Jesus, I found everything. Amen. So हमें तैयारी करनी है. So we have to बार बार prepare. प्रभु का आत्मा मुझे यही कहता. It's like the Bible says He trains our fingers for battle. परमेश्वर मुझसे बार बार ये कहता है, वो हमारी उंगलियों को युद्ध लड़ना सिखाता है. क्योंकि याद रखो, बाइबल कहती है कि सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा जो दुश्मन है शैतान, वो मौके तलाश रहा है कि कैसे तुम्हें फाड़ खाए. Because the Bible says, be sober, be vigilant, because your enemy, the devil, is looking for an opportunity to devour you. Resist him steadfast in faith. विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो. एक ही तरीके से आप उसका सामना कर सकते हो There's only- जब आप विश्वास में दृढ़ हो. There's only one way to steadfastly resist him when you are steadfast मैंने in आपको faith. बताया था, हमारा जो एडवर्सरी है, हमारा जो दुश्मन है, उसके अंदर कोई दया नहीं है. I told you our adversary knows no mercy. He will not spare your family, he will not spare your kids. वो आपके परिवार को नहीं छोड़ेगा, आपके बच्चों को नहीं छोड़ेगा. But Jesus has given us authority over him. लेकिन यीशु ने हमें उसके ऊपर अधिकार दे दिया है. Amen. अगर अपने आप ही परमेश्वर डील कर लेता शैतान से, तो फिर कलीसिया को कभी ये अधिकार नहीं देता और ये नहीं कहता कि तुम उसका विरोध करो. विरोध हमें करना है, रेजिस्ट हमें करना है शैतान को. If God was going to on his own take care of the devil, he would not have given us the authority nor asked us to resist him. Amen. So एक सोल्जर की तरह जीना ऑप्शन नहीं है. हम सब उस लड़ाई में बुलाए गए हैं. So it's not an option to live like a soldier. We are all called in this battle. पौलुस को तिमोथी कहता है, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़. Paul tells Timothy, fight a good fight of आप faith. जानते हैं कुश्ती क्यों का है? वॉर खत्म हो चुका है. You know why? समझो इस बात को. Why it's called a यीशु wrestling? मसीह ने वॉर जीत लिया है. Why is it called a wrestling? Because the war is over. Jesus has already won the war. The war is over. The wrestling is still going on. But the rest, Because the wrestling is personal. मल युद्ध अभी भी चल रहा है, क्योंकि मल युद्ध जैसे दो शैतान लोग के बीच होता आपके है. विरोध में आता है, आपके पड़ोसी के विरोध में वैसे नहीं आता. The way the devil comes against you personally, he does not come against your neighbor the same way. उसको पता है किसको क्या देना है. He exactly knows what to tempt one person with. Amen. इसीलिए हमें तैयारी करनी जरूरी है. This is why we have to prepare. Amen. So जैसे मैंने कहा था, the heat will increase. आग जो है वो बढ़ने वाली है, गर्मी बढ़ने वाली है. Amen. और इस साल अगर एक शब्द को मैं बार बार आपको बोल सकूं, वो है coming back to our commitment, our dedication to the Lord, what He has done for us. और हम बार बार उस वचनबद्धता पर, उस निर्णय पर वापस आते रहें, अपने आप को उसके लिए डेडिकेट करते रहें जो उसने हमारे लिए किया है. Amen. ये ना भूलें कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया, क्या उसने हमारे लिए सहा है. और जैसा जीवन उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया, जैसा जीवन आप जीते हो, Christ offered himself as an offering. The way you respond to his sacrifice is an offering to him. मसीह ने पहले से ही आपके लिए अपना बलिदान दे दिया, पर जैसा जीवन आप उसके लिए जीते हो वो आपका प्रत्युत्तर है, आपका बलिदान है उसके प्रति. Amen. So आज अब हम शुरू कर रहे हैं वचन को. Now we'll start the Hallelujah. word. ये अभी एपिटाइजर थे थोड़े से. तैयार हैं आप भोजन के लिए? Amen. आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ एक ऐसी पुस्तक के बारे में, बाइबल से, ऐसी पुस्तक से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जो सबको बहुत पसंद है. I want to start from a book in the Bible which everybody loves. इतनी पसंद है कि कईयों की बाइबल में वो चिपकी हुई है. People love it so much that it's stuck in some people's And mind. that is the book of Leviticus. वो लेवी व्यवस्था की किताब है. And I want to talk about the 5 offerings in the book of Leviticus which foreshadow, which is a picture of
the ultimate sacrifice, Jesus. और मैं उन 5 बलिदानों की बात करना चाहता हूँ जो कि एक झलक है, एक परछाई है, वो आने वाले बलिदान जो यीशु ने अपना दिया उन 5 रूपों में। Amen. आमीन। मैं चाहता हूं आप अपना दिमाग स्वर्ग और नरक से हटा लो। I want you to remove your attention from heaven and hell. क्यों हम पवित्र जीवन जिए? Why should we live a holy life? जीसस। यीशु के कारण। क्यों हम एक ऐसा जीवन जिए जो उसको महिमा दे? जीसस। Why should we live a life that glorifies him? यीशु के कारण। क्यों हम और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े? जीसस। Why should we proceed forward with more commitment? Because क्यों हम फेथफुली प्रभु के पीछे चलें? जीसस। Why should we walk after the Lord faithfully? यीशु के कारण। बाइबल कहती है वो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा। The Bible says he was faithful until death. और अगर हम कहते हैं हम उसके नाम से बुलाए गए हैं, जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। And if we say we are called by his name as he is, so are we. हम ये नहीं कह सकते हम उसके जैसे हैं और हमारा नेचर, हमारा व्यवहार, हमारा कंडक्ट बिल्कुल उल्टा हो उस मसीह से। We cannot say that we are like him, but our conduct, our behavior is exactly opposite to him. हाँ, अगर आप देखें कोई व्यक्ति कहे मैं बीजेपी सपोर्टर हूं और आप देखें उसने यहाँ पे कांग्रेस का वो पहना है लोगो, तो आप कहेंगे कुछ गड़बड़ है। If you see someone who says I'm a BJP supporter and if they are wearing a Congress emblem here, you will say there's something wrong. समझने वाले समझ जाएं। ओके, Hebrews 10:1, इब्रानी 10:1, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। मेरे पीछे बोलो, असली स्वरूप नहीं। यानी जो कुछ आप लय व्यवस्था में अब जो 5 बलियां आप पढ़ेंगे वो क्या है? वो आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब है परंतु असली स्वरूप नहीं है। For since the law has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities, so when you read the law, it is only a shadow of the things that will come, not the true reality of it. असली स्वरूप नहीं, इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। So it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect who draw near. Amen. अब जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, When we read the Old Testament, तो हम नए नियम के प्रकाशन से पुराना नियम पढ़ते हैं। we read the Old Testament through the revelation of the New Testament. अब हमारे पास सब्सटेंस है। Now we have the substance. क्या बोलेंगे? असलियत है जो मसीह है। We have the reality that is Christ. तो अब हम पुराना नियम जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो सारी चीजें क्यों लिखी गई हैं। So now when we read the Old Testament, we understand why all those things were written. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मूसा और व्यवस्था में किसके बारे में लिखा गया है? किसके बारे में लिखा गया है? मेरे बारे में लिखा गया है, यीशु मसीह ने कहा। Jesus said the law and Moses testify of me. तो अब जब आप पढ़ते हो कि यीशु ने कहा कि मूसा की व्यवस्था में मेरे बारे में लिखा गया है, तो अब आप ढूंढो व्यवस्था में यीशु मसीह कहाँ है। So when you have read that in the book of Moses it talks about me, now you find out where it talks about him. तब मजा आएगा पुराना नियम पढ़ने में। Then you will enjoy reading the Old पर Testament. आप कहोगे ये क्या लिखा है? Otherwise you will say what is written? किसके बारे में लिखा है पुराने नियम में? Who is it written about in the Old Testament? मुझे लग रहा है थोड़ा इंटेंस फास्टिंग चल रही है। किसके बारे में लिखा है पुराने नियम में? Who is it written about? Amen, amen. So 5 प्रकार के जो बलिदान हैं उनको मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर एक एक करके जाएंगे। So there are 5 kind of sacrifices that जो we बलियां हैं 5 प्रकार की। 5 kinds of पहली sacrifices. है द बर्न्ट ऑफरिंग या होम बलि। The first is the burnt offering या home bali. दूसरी है द ग्रेन ऑफरिंग या अन्न बलि। तीसरी है पीस ऑफरिंग या शांति बलि। चौथी है द सिन ऑफरिंग, पाप बलि। और 5वीं है द गिल्ट ऑफरिंग, दोष बलि। ये 5 बलियां जो लेविटिकस लय व्यवस्था की पुस्तक में लिखी गई, और आज हम देखेंगे कैसे ये सब मसीह के बारे में। These 5 offerings were mentioned in the book of Leviticus, and we'll see how these were all about the Lord.
तो अगली बार जब आप लय व्यवस्था पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा. So next time when you read the book of Leviticus, you'll really enjoy it. Amen. यूजुअली जो लोग कहते हैं कि मुझे पूरी बाइबल खत्म करनी एक साल में, जब लेविटिकस में आते हैं तो दे गिव अप. When people say they want to finish the Bible in a year, they give up when they reach the book of Leviticus. Amen. So let's talk about the first offering. पहली जो बलि है, the burnt offering. होम बलि की हम बात करते हैं. And it represents complete or total surrender. और ये दर्शाता है पूर्ण समर्पण को. Amen. और इस साल के पहले संडे हम देखेंगे कि कैसे ये प्रभु यीशु मसीह के लिए है, मगर उसके बाद हम ये भी देखेंगे इस बलिदान के बाद हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए. So we know that this is for the Lord Jesus, but today, as it's the first Sunday, we will see after this sacrifice what should be our response to Him. Amen. और इसमें बात है जानवरों की बलि की. And it talks about animal sacrifice. भेड़, बकरियां, बैल. Sheep, goat, ox. और मैं इससे पहले मैं बोल दूं कि ये बलियां केवल यहूदी धर्म में नहीं थी. ये यहूदी लोग थे जिनको परमेश्वर ने कहा था. ये हिंदू धर्म में भी थी. आप वेदों में देखेंगे तो सब जगह आपको ये सेम तरह की बलियां मिलेंगी. बैलों की बलियां, बछड़ों की बलियां, ये सारी बलियां उसमें भी है. And these were not only तो पहले given to क्लियर कर दूं Jews. आपको. Yeah, these were not only given to Jews, you will also find these in the old Hindu texts. वैदिक टाइम में ये सब बलियां होती थी. In the times of the different Vedas. मगर all अब हम लेविटिकस में आते हैं. Let's come to the book of Leviticus.